وقت گزر گیا مگر زخم ابھی تازہ ہیں۔ کیا ہم نے شہید بچوں کے خون کا بدلہ لے لیا ہے؟ پوچھیں گے آرمی پبلک اسکول کے شہداء کی بہادر ماؤں سے۔ شہید بیٹوں کی کہانی ان کی ماؤں کی زبانی۔ دسمبر کی صبح ویسے تو ایک عام سی صبح تھی، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ جب یہ دن ختم ہوگا تو پاکستان بدل چکا ہوگا۔ یہ وہ دن ہے جو پاکستان کی تاریخ کا آج سیاہ ترین دن کہلاتا ہے، جسے یاد کرتے ہوئے آنکھیں نم نہ ہونا ناممکن ہے۔ یہ وہ دن بھی ہے جس دن ہم نے ایک نیا پاکستان بنایا۔ اس روز بھی آرمی پبلک اسکول کی ماؤں نے معمول کے مطابق اپنے بچوں کو بڑے پیار سے تیار کر کے اسکول بھیجا، مگر انہیں علم نہیں تھا کہ وہ آخری بار اپنے بچوں کے چہرے دیکھ رہی ہیں۔ وہ مائیں نہیں جانتی تھیں کہ اپنے جن جگر گوشوں کو وہ یونیفارم میں اسکول بھیج رہی ہیں، شام کو ان کی واپسی کفن میں ہوگی۔ اس روز آرمی پبلک اسکول میں دہشت گردوں نے معصوم بچوں کے ساتھ ظلم و بربریت کی وہ داستان رقم کی، پوری تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ خون میں ڈوبی اسکول کی دیواریں، بچوں کے اسکول بیگ اور کتابیں آج بھی وہ امیجز ہیں جو پوری دنیا میں دیکھے جاتے ہیں، اور ان دہشت گردوں کی بربریت کا اندازہ لگایا جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی سوچا جاتا ہے کہ یہ کیسا بزدل دشمن تھا جس نے بچوں پہ ہاتھ اٹھایا۔ برے سے برے دشمن بھی بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں، مگر یہ وہ دشمن تھا جس نے پلان کر کے ماؤں کے جگر گوشوں کو ٹارگٹ کیا۔ اس سانحے کو 1 سال ہونے والا ہے، مگر ان ماؤں کے زخم ابھی تک تازہ تو ہیں ہی، ساتھ ہی ساتھ پوری قوم کے زخم بھی تازہ ہیں۔ آج کا پروگرام ہم اسی حوالے سے کریں گے۔ ہمارے جو خصوصی مہمان ہیں، ہر روز میرے بڑے محترم مہمان آتے ہیں، مگر آج کے مہمان صرف وہ مائیں ہیں، 16 دسمبر کو اپنے بچے اسکول بھیجنے والی وہ مائیں، 16 دسمبر کے بعد بہادری سے معاملات کا مقابلہ کرنے والی مائیں، 16 دسمبر کے بعد آج جو پہلا 16 دسمبر 1 سال بعد آ رہا ہے، بڑے ہی دکھے دل سے، بڑے ہی ڈرے دل سے اس کا انتظار کرنے والی وہ مائیں، 16 دسمبر کی وہ مائیں جنہوں نے اپنے بچوں کو دفنا کر ہم سب کا خراج تحسین نہ صرف قبول کیا، اور ہم سب کی حیرانگی بھی دیکھی کہ اتنی بہادر مائیں شاید کسی بھی نیشن میں نہیں ہیں۔ آج کے پہلی مہمان ہیں شاہانہ صاحبہ، شہید اسلم خان صاحب کی والدہ ہیں، ایک دفعہ پہلے بھی میرے پروگرام میں آ چکی ہیں۔ ویری وارم ویلکم اینڈ بہت شکریہ آپ کو شاہانہ صاحبہ کہ آج آپ میرے پروگرام میں موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شاہانہ، میری آپ سے پہلے بھی جب بات ہوئی یہ اسفن کے بارے میں، آپ نے بتایا کہ وہ ماشاءاللہ بہت ہی انٹیلیجنٹ، بہت ہی بہادر بچے تھے۔ یہ 1 سال اسفن ہم میں نہیں رہے، مگر ہم چاہتے ہیں کہ آج ان کو پھر یاد کریں، ہمیں اسفن کے بارے میں کچھ اور باتیں بتائیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ہمارے بچوں کا ذکر کوئی بھی کرتا ہے تو بہت اچھا لگتا ہے، اس لیے کہ وہ ایسے بچے ہیں جنہوں نے پوری قوم کو ایک نئی سمت دی ہے، اور ان بچوں کو بالکل بھی کوئی نہیں، کسی کو نہیں بھلانا چاہیے۔ پوری قوم آپ کے ساتھ ہے شاہانہ، ہر ایک کو یاد ہے کہ 16 دسمبر کو جب یہ خبر آئی تو کیا گزری سب کے اوپر۔ آپ اگر 16 دسمبر کو آئی نو مشکل ہے یاد کریں، آپ کدھر تھی، کس طرح، کوئی صبح کی کوئی بات یاد ہو جو آپ نے اسفن کو کہی ہو، کوئی خاص بات ایک دن پہلے کی یاد ہو، اور کس طرح آپ کو پتہ چلا اپنے بیٹے کی شہادت کا؟ 16 تاریخ سے 1 رات پہلے جو تھی وہ میں نے اسفن سے پوری ڈیٹیل میں ہر طرح کی باتیں پوچھی تھی، چونکہ اس کے ایگزام ہو چکے تھے اور وہ مجھے بتا رہا تھا کہ مما صرف 3-4 دن ہے کہ ہمارے اس کے بعد ہماری چھٹیاں ہو جائیں گی، تو پوری ڈیٹیل میں اس کی کتابوں کے بارے میں، اس کے سبق کے بارے میں، اس کے جو لیکچر سے اس کے بارے میں ڈیٹیل پوچھتی رہی۔ اس کے علاوہ اس کی باقی جو دوستوں کے ساتھ جو ایکٹیویٹی تھی اس کے بارے میں نے اس کی پوری معلومات لی، اور مجھے پتہ ہی نہیں تھا، اب یقین مانے مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ اگلی دن اسی رات کو وہ میرے ساتھ ہی نہیں ہوگا، اتنی اس طرح ہوگا کہ وہ ایک دم غائب ہو جائے گا گھر سے، اور جب وہ آئے گا تو وہ اس حالت میں آئے گا۔ وہ گیا تو اپنے بوٹ پہن کے تھا اور آیا پھر لوگوں کے کندھوں پر۔ یہ تو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی، 16 سے پہلے تو میں نے یہ تصور بھی نہیں کیا تھا کہ ایسا کچھ ہوگا، اور ایک دم یہ ایسا ہو گیا۔ تو
बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आपको टीवी की खबरों के थ्रू पता चला या कैसे नोटिफाई हुआ आपको? जी, असद के बारे में? दिसंबर की सुबह भी एक नॉर्मल सुबह थी, वो तरीके से ही जैसे अपने रूटीन के टाइम पे उठता था, उसने नाश्ता भी सही तरीके से किया। अलबत्ता एक चीज़ मुझे उसकी अभी भी मैं वही नक्शा मेरे दिमाग में आता है कि जब वो जाने लगा था तो मैंने उसको जी भर के देखा था, ऊपर से नीचे तक मैंने उसको देखा था। उसके बूट थोड़े से गंदे हो रहे थे तो मैंने उस वक्त सर्दियों के दिन थे तो मैंने शॉल से उसके बूट जो हैं वो सफ़ा किए थे। और मैं बिल्कुल उस लम्हे को मैं फ़ील कर सक रही हूँ, उस लम्हे को बिल्कुल मैं अपने दिमाग में खाका बना सक रही हूँ कि मैंने ऊपर से नीचे तक उसको जी भर के देखा था। मुझे नहीं पता था कि बेटा ये आपका आखिरी दीदार है जो मैं कर रही हूँ, इसके बाद आप नहीं आओगे, मुझे नहीं पता था शायद। और उस वक्त को मैं कोस रही हूँ कि जब मैंने उसके लिए दरवाज़ा खोला, मैंने खुद दरवाज़ा खोला और मैं साथ यही कहती जा रही थी इससे कि वो थोड़ा सा लेट हो गया था स्कूल जाते वक्त, तो मैं उसको बार बार ये कह रही थी कि बेटा जल्दी करो और जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। और मुझे नहीं पता था कि मैं उसको कहाँ भेजने की जल्दी कर रही हूँ। मैंने खुद अपने हाथ से उसके लिए दरवाज़ा खोला। जब वो गली से टर्न हो गया मैं उसको आखिर दम तक देखती रही जब तक वो मेरी नज़रों से ओझल नहीं हो गया। वो लम्हा मुझे बिल्कुल अभी तक उसी तरह याद है, नहीं निकल रहा मेरे दिमाग से। और जब बहुत बातें हुई फिर इस एक साल में, पूरी कोशिश की गई कि जिन लोगों ने ये किया है उनको पकड़ा जाए। आपको लगता है आपके बेटे का बदला ले लिया गया है? मुझे नहीं पता, मैं तो दुख रही हूँ। मैं तो ज़रूर चाहूँगी कि मेरे बच्चे का जो दुश्मन है, इस कौम के जो दुश्मन है, उनको इतनी आसान सज़ा ना दी जाए। अभी गुज़श्ता कुछ दिन पहले जो है वो 4 लोगों को फांसी दी गई और कहा गया कि वो उनके सहूलतकार थे जो APS में हमला करने वाले थे। तो मैंने उस वक्त भी यही कहा था कि इनको इतनी आसान सज़ा नहीं देनी चाहिए, इससे कि इन्होंने हमारे बच्चों को बहुत अजियत दे के मारा है, बहुत अजियत मिली है इनको उनकी तरफ से। इनकी सज़ा भी इतनी आसान नहीं होनी चाहिए और इनको तो चौक पे लटका देना चाहिए और माओं को और वालिदैनों को बुलाना चाहिए जिनके बच्चे इन्होंने छीने हैं और उनको कहना चाहिए कि आप लोग इनकी सज़ा तजवीज़ करें। कोई पैगाम जो आप कौम की माओं को देना चाहेंगी? आपने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, आप बाकी माओं को कोई पैगाम देना चाहेंगी? मैं क्या माओं को पैगाम दूंगी? मेरे साथ तो जितनी माएँ हैं वो सब रो रही हैं, अब यकीन माने सब रो रही हैं। हम तो बिल्कुल जैसे पागलों जैसे हो गए, एक पल में हंसते हैं, दूसरे पल में इतना रोते कि सबकी तबीयत भी ख़राब हो जाती है। हम क्या बोलेंगे, हमारे तो इतने प्यारे प्यारे बच्चे चले गए। बेशक ये शहादत का रुतबा जो हमें अल्लाह ने अता किया, हमारे बच्चों को अता किया, और उनकी वजह से जो रुतबे हमारे बुलंद हुए इसका तो मैं नहीं फरामोश कर सक रही। बेशक वो रुतबे बहुत अजीम है लेकिन उसकी कीमत बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी कीमत दी है हमने। आसान नहीं होता है, बिल्कुल आसान नहीं होता है इतनी बड़ी कीमत को बर्दाश्त करना। अल्लाह मियां बस सब्र दे दे, हमें रहम कर ले हम पर। पिछले 1 साल में जो असद के दोस्त हैं वो माशाल्लाह अब बड़े हो गए हैं 1 साल। अगर आप सोचें कि 1 साल में असद भी होते तो कोई ख़ास बात जिस मौके पे आपको बहुत महसूस हुआ हो उनकी कमी का? आप यकीन नहीं करेंगे, जब मैट्रिक के एग्ज़ाम थे तो उसके कुछ दोस्त भी थे, उसके कज़न्स भी थे, वो मैट्रिक का एग्ज़ाम दे रहे थे। आप यकीन नहीं करें, वो बहुत भारी दिन था मेरे लिए। मैं सारा दिन रोती रही। पर जब मैट्रिक का रिजल्ट था, मेरे साथ जो माएँ थी, हम सारे इकट्ठे भी हुए थे उस दिन जिस दिन रिजल्ट अनाउंस हुआ था। आप यकीन माने हम बहुत रोए, इसलिए कि सब बच्चे वहाँ मौजूद थे, हमारे बच्चों के रिजल्ट नहीं थे, इन्होंने एग्जाम ही नहीं दिया था। पिछले दिनों मैं इसके कुछ दोस्तों से मिली थी जो फर्स्ट ईयर में उन्होंने एडमिशन ले लिया। मैंने उनके लिए बहुत दुआएं की। मैंने उनको यही कहा कि बेटा अल्लाह मियां आपको सलामत रखे, इसलिए कि बच्चे बहुत कीमती होते हैं, एक दफ़ा चले जाते हैं फिर वापस नहीं आते। और ये इतनी खुशी की बात होती है, अगर मेरा बचपन जिंदा होता तो वो भी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट होता। मैं उस दिन भी असफल के बाबा को कह रही थी इस 1 साल में भी असफल और भी लंबा हो चुका
ہوتا اور بھی بڑا ہو چکا ہوتا. کیا پتا اس کی ہلکی ہلکی شیپ نکل رہی ہوتی, وہ 16 سال کا ہو چکا ہوتا. لیکن میں کیا کروں, اس کی تو عمر ہی رک گئی, اس کی تو وہ جوانی اس کو نہیں دی گئی, اس کی جوانی سے پہلے ہی اس کو چھین لیا گیا. وہاں سے آپ کیا پوچھ رہی ہیں؟ شہانہ, ہمت کری آپ نے, اور آپ ہمت والی مائیں, ساری قوم آپ کے ساتھ ہمت کری ہے. آپ کو یہ ضرور باور کراتی چلوں کہ یہ آنسو بہانے میں آپ اکیلی نہیں ہیں, پوری قوم آپ کے ساتھ ہے, آپ کے ساتھ اور مدرس بھی ہیں, آپ نے ان کو حوصلہ دینا ہے. 16 دسمبر کو ظاہر ہے آنسو آئیں گے, آنسو بہا لیجئے. آنسو اسی لیے ہیں, آپ کی آنکھوں میں نہیں پوری قوم کی آنکھوں میں آنسو ہیں. یہ ماں کی دل کی باتیں ہیں جو ہم آج چاہتے ہیں کہ پوری قوم کو سنائیں. ہم سنتے ضرور ہیں, بات بھی کرتے ہیں, لیکن آج آپ سنیے پاکستان کی ماؤں کے درد. وقفہ لیں گے, اس کے بعد پھر ملتے ہیں. کیپ واچنگ ٹونائٹ وتھ فرحان. سکھایا ہم نے بچوں کو انہیں ڈرنا نہیں آتا, تمہارے بیت کے احکام پہ جھکنا نہیں آتا. چلائی گولیاں تم نے ہمارے پیارے پھولوں پر, لٹا دی جان بچوں نے شہادت کے اصولوں پر. ویلکم بیک. پاکستان سن لو, آج پاکستان کی مائیں میرے ساتھ موجود ہیں. 16 دسمبر کی وہ مائیں جن کو پوری قوم خراج تحسین پیش کرتی ہے. گلرانہ صاحبہ شہید محمد علی کی ماں ہیں. علی ان کے اکلوتے بیٹے تھے. 3 بیٹیاں ان کی ماشاءاللہ اللہ انہیں لمبی عمر سے زندگی دے. ایک 2nd ایئر میں ہیں, ایک کلاس 9th میں ہیں, اور ایک کلاس پریپ میں ہیں. علی کلاس 9 کے اسٹوڈنٹ تھے. گلرانہ صاحبہ بہت شکریہ, السلام علیکم. وعلیکم السلام, آپ کا بہت شکریہ. آپ کو پتہ کیسے چلا علی کی شہادت کا, کس نے بتایا آپ کو؟ میں نے میرے بس پتہ نہیں, میرے دل میں آیا, میں نے اچانک خود ٹی وی لگا لی, آن کر لی ٹی وی, اور اس میں اسی وقت میرے سامنے بریکنگ نیوز آئی کہ ڈیفینس کے سائٹ پہ حملہ ہوا ہے. آپ یقین کریں گے ابھی نام بھی نہیں لیا گیا تھا کون سا اسکول, لیکن میں نے کہا علی کے اسکول پہ حملہ ہو گیا, اور اسی وقت میرا رونا سٹارٹ ہوا تھا. اور جب پہلی اطلاع آئی کہ گیٹ پہ 3 بچے زخمی ہیں, آپ یقین نہیں کریں گے ان 3 بچوں میں میرا بیٹا پڑا تھا. مجھے نہیں معلوم, اور میں یہی رو رہی تھی کس کے بچے ہیں, کس کے لخت جگن ہیں, کس کی جان ہے, مجھے نہیں پتا. میں نے خود سب کچھ اپنی آنکھوں سے بریکنگ نیوز دیکھی, اور پھر جب ہم نے دوڑ لگائی ہاسپٹل کی طرف, اس کے فادر دوسرے ہاسپٹل میں CMH گئے, میں دوسرے ہاسپٹل گئی, اور لاشوں میں پھر میں نے اپنے بیٹے کو خود پہچانا, خود میں نے اس کو ڈھونڈا, اور خود میں اس کو گھر لے کے آئی. وہ ماں جو اس کے زکام اور بخار کو برداشت نہیں کرتی تھی, اس ماں نے اس کو خون میں, پٹیوں میں, ڈیڈ باڈی کی طرح تابوت میں اپنے گھر لے کے آپ سوچ نہیں سکتی کہ وہ ماں کیسے بھول جائے وہ لمحہ, وہ ماں کیسے بھول جائے وہ دن, وہ گھڑی کیسے بھول جائے وہ ماں. گلرانہ, آپ جس جگہ پہ کھڑی ہوئی ہیں ان میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتی آپ کو. میں صرف اتنا کہہ سکتی ہوں کہ اس وقت آپ کے ساتھ پورا پاکستان ہے, اور پورے پاکستان کی آنکھیں پرنم ہیں اس وقت. آپ کے جذبات ہم سمجھ سکتے ہیں. کوئی ایسا موقع جب آپ کو محسوس ہوا ہو کہ علی آپ کے آس پاس ہی ہیں, شہید زندہ ہوتے ہیں ہمیشہ اس سال میں؟ آپ یقین کریں گے کہ علی میرے ساتھ میسیجنگ کرتا ہے باقاعدہ. آپ یقین نہیں کریں گی کہ جب یہ سانحہ ہوا, اور 2 مہینے تک میں یہ انتظار کرتی رہی کہ کہیں سے, حالانکہ میں خود اس کو لے کے آئی تھی, خود اس کو دفنایا تھا, خود سب کچھ کیا تھا, لیکن میں انتظار کر رہی تھی کہیں سے مجھے میسیج ملے گا کہ علی زندہ ہے, اور علی کوما میں تھا. آپ یقین کریں گے علی نے میسیج بہن کے خواب میں آ کے دیا کہ مما کو میرا انتظار نہ کریں, میں اب نہیں آؤں گا. مجھے علی کی موجودگی فیل ہوتی ہے ہر وقت, ہر جگہ. بس تکلیف کی بات یہ کہ مجھے نظر نہیں آتا. بہت
बहुत शुक्रिया गुलिराना साहिबा हमारे साथ अपने जज्बात शेयर करने का। मैं चाहती हूँ पूरा पाकिस्तान आपकी बात सुने, मैं चाहती हूँ पूरा पाकिस्तान आपके साथ रोए, क्योंकि जिंदा कौमें अगर समझती हैं कि इकट्ठे हंसना है तो जिंदा कौमें इकट्ठे रोती भी हैं। और ये मामला ऐसा है जिसके ऊपर आपने सबक तो सीखना है मगर भूलना नहीं है और रोना ज़रूर है। 16 दिसंबर दोबारा आ रहा है, उसके साथ साथ इन माओं के जज्बात हमें नज़र आ रहे हैं, महसूस हो रहे हैं। ये अकेली माओं के जज्बात नहीं होने चाहिए, ये पाकिस्तान की हर माँ का इनके साथ दिल धड़कना चाहिए, पाकिस्तान की हर शख्स का इनके साथ दिल धड़कना चाहिए और इनको महसूस होना चाहिए कि पाकिस्तान इनके साथ खड़ा है। हम वक्फा लेंगे, उसके बाद आपको मिलाएंगे एक और बहादुर माँ से। कीप वॉचिंग टुनाइट विद फरिया। बच्चों को यूं हमने किया रुखसत, मुकद्दर में जो लिखी थी मिली उनको वहाँ जन्नत। मेरे बच्चों ज़माना तुमको देखो याद रखेगा, तुम्हारे खून का कतरा इसे आबाद रखेगा। एंड वेरी वार्म वेलकम बैक। आज का प्रोग्राम मुश्किल है इस हवाले से कि तकलीफ दे वाक़यात हैं, मगर हम बताना चाहते हैं पाकिस्तान की माओं को कि तमाम ना सिर्फ पाकिस्तान की माएँ बल्कि पाकिस्तान की तमाम अफराद आज उनके साथ मौजूद हैं। 16 दिसंबर को वो अकेले खड़े नहीं होंगे, हम सब उनके साथ मौजूद होंगे। मेरे साथ इस वक्त शगुफ्ता ताहिर साहिबा मौजूद हैं और हाउस वाइफ हैं। 4 बच्चे इनके चारों के चारों APS के स्टूडेंट्स। उनकी बड़ी बेटी इस वक्त पेशावर यूनिवर्सिटी में हैं, यहीं से पढ़कर गई हैं। उसके बाद उनके जो बेटे हैं मोहम्मद मुनीब खान, वो उस दिन 16 दिसंबर को ऑडिटोरियम के अंदर मौजूद थे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह आज वो बिल्कुल ठीक ठाक हालत में हमारे साथ मौजूद हैं। ही इज़ वन ऑफ द सर्वाइवर्स। और उनके दूसरे बेटे मोहम्मद शहीद खान जो 8th क्लास के स्टूडेंट थे, वो आज हमें मौजूद नहीं हैं, दहशतगर्दों ने उनको शहीद कर दिया। सबसे छोटी बेटी उनकी क्लास 6 में अभी भी APS में मौजूद हैं। वेरी वेरी ब्रेव मदर शगुफ्ता ताहिर साहिबा, बहुत शुक्रिया मेरे प्रोग्राम में आने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। शगुफ्ता साहिबा, 2 बेटे दोनों ही उस दिन APS में थे, कैसे भेजा था बच्चों को स्कूल और क्या किसने बताया उसके बाद आपको जो वाक़यात हुए? सुबह बस ये रूटीन के मुताबिक ये लोग गए हैं स्कूल, बल्कि एक दिन पहले ये जो फ्राइडे था, फ्राइडे को लास्ट फ्राइडे को इन्होंने कहा कि हमें यार ये छुट्टी करवा दें आप स्कूल से। तो मैंने इनको कहा कि नहीं बेटे आप छुट्टी नहीं करना, आपके पेपर्स मतलब बस सब नज़दीक हैं, तो छुट्टी आप लोगों की एक छुट्टी मुझे बहुत महंगी पड़ती है, आपने स्कूल जाना है। तो बहरहाल ये फिर थोड़ा सा इन लोगों ने वो किया है, दोनों बहन भाइयों ने, फिर उसके बाद ये चले गए स्कूल। और फिर रात को ये 1-1:30 बजे तक गेम भी खेलता रहा मोबाइल में उस दिन मंडे को। मैंने कहा बेटे सुबह लेट हो जाओगे, सो जाओ, सुबह लेट हो जाओगे। मुझे भी जल्दी थी, इसे स्कूल भेजने की। कहा शहीद तुम लेट हो जाओगे, सो जाओ। इस तरह करते करते 1:30 बज गया। तो फिर मैंने इसकी बहन से कहा, मैंने कहा मोना बेटा इसको कहो सो जाए, फिर सुबह लेट हो जाओगे ना स्कूल के लिए। तो कहता है कि हाँ मोना बाजी बस ये मेरी आखिरी गेम है, बस ये मेरी आखिरी गेम है और ये उसकी आखिरी गेम होगी। और सुबह जब वो उठा है स्कूल के लिए, उसने बस जल्दी से नाश्ता किया, वो उठा मतलब वॉशरूम वगैरह जाके और नमाज़ पढ़ी, और इतनी जल्दी उसने नाश्ता किया कि मतलब आप बस समझ लें कि जैसे एक इंसान की जो उसका जब टाइम पूरा हो गया, उसने बस जल्दी खाया। उसने क्या खाया, बस थोड़ा बहुत ही खाया और बस तैयार होके और रेडी होके दरवाजे पे खड़ा हो गया जाने के लिए। और दोनों बहन भाइयों का वेट करा कि ये लोग मतलब रेडी हो रहे थे वो लोग, और चुप खड़ा हुआ था। उसको चुप लग गई थी, बिल्कुल खामोश। वहाँ से निकला, दरवाजे से निकल के फिर बाहर गेट की तरफ खड़ा हो गया, बस खामोश हो के खुद ही निकल के जा रहा था, खुद ही अपनी शहादत के लिए। ऐसा लग रहा था अपनी शहादत के लिए। अब मैं सोचती हूँ मुझे वो सारी चीज़ें याद आती हैं कि अपनी शहादत के लिए इनको खुद ही जल्दी थी, खुद ही भागे जा रहे थे ये मेरे घर से निकल के। फिर जब इसके डैडी इनको छोड़ने के लिए स्कूल गए तो वहाँ भी है गाड़ी से उतरा है तो अपनी डैडी को यूँ बस देखता हुआ चला जा रहा है,
ऐसे मुड़ के उसने देखा अपने डैडी को और बस चला गया। इसके डैडी कहने लगे मुनीब मैंने तुम्हारी बेटे फीस जमा करवा दी है, शहीर तुम्हारी फीस रहती है, तुम अपने सर को बता देना, मैं 1-2 दिन में जमा करवा दूंगा। आपके दूसरे बेटे भी वहाँ पर थे, आपको ज़ाहिर है जब खबर मिली होगी तो दोनों की फिक्र हुई होगी। आपको कैसे पता चला आपके एक बेटे ठीक हैं और एक शहीद हो गए हैं? मेरा जो इनके जो डैडी थे, शहीद के जो डैडी थे, वो वहीं गेट के स्कूल के गेट के बाहर थे। मेरा भतीजा वहाँ पर रेस्क्यू में होता है, उसने बताया कि चाचू वहाँ पे स्कूल पे अटैक हो गया और मुनीब शहीद की तरह। उन्होंने कहा स्कूल गए हुए, तो कहते आप स्कूल पहुँचे वहाँ अटैक हो गया। ये स्कूल के बाहर थे। इन्होंने 11:15 बजे मुझे फ़ोन किया कि शगुफ्ता स्कूल पर अटैक हो गया है तो तुम दुआ करो। मैंने कहा क्यों आप ऐसे घबरा रहे हैं, अब तो ये आम सी बात हो गई है, कोई 1-2 बंदा घुस गया होगा, अभी आर्मी इनको कंट्रोल कर लेगी। मैं इतना सेटिस्फाई थी कि आर्मी का स्कूल है, अगर कोई घुस आया होगा ना कोई 1-2 बंदे तो कंट्रोल कर लेगी आर्मी। मुझे क्या पता था कि वो इतनी वहाँ पर एक जंग की हालत हो रही है, इतनी फायरिंग कि कोई 15 मिनट के बाद मैंने इनको तसल्ली देकर मैंने फ़ोन बंद कर दिया। कोई 15 मिनट के बाद मैंने इन्हें दोबारा कॉल बैक किया, दोबारा मैंने इन्हें कॉल बैक की तो कहते हैं इतना वो रो रहे हैं, घबराए हुए, कहते हैं इतना ज़्यादा यहाँ पे बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है, दुआ करो तुम दुआ करो। जब इन्होंने ये कहा तो मेरा जिस टाइम दिल धड़का और मैंने इनको कॉल बैक किया ना तो मुझे ऐसा लगता है कि वही मेरे बेटे की शहादत का टाइम था, वही मेरी बेटे की शहादत का टाइम था। और फिर इन्होंने मुझे बस ये कहा कि रोने लगे आगे से और मैंने फ़ोन बंद किया और मैंने जल्दी से वज़ू की, मैंने नफिल पढ़े, मैं दुआ पढ़ती रही। और मुनीब बड़े बेटे का नहीं पता चल रहा था, दोनों का नहीं पता चल रहा था। मोहम्मद मुनीब से फिर आप कब मिली और शहीद को कब देखा? 1:30 बजे मुझे पता चला कि मुनीब खैरियत से है, लेकिन मुनीब वहाँ पर जो डिफेंस स्कूल के पीछे जो पार्क है ना, डिफेंस पार्क, ये उधर पे थे ये बच्चे वहाँ पर। और मुनीब आप बता रही हैं कि ऑडिटोरियम में ही थे, तो ऑडिटोरियम में कैसे बच्चे मुनीब थे? मुनीब के ऊपर जो बता रही हूँ ना, एक बच्चा जो शहीद हुआ वो इसके ऊपर गिरा हुआ था, तो उस टेररिस्ट ने ये समझा कि ये भी शहीद है, उसने अपने आप को डेड भी शो किया और उन्होंने बस वो इस तरह। फिर उसने जब दोबारा टेररिस्ट ने मैगजीन लोड की है ना तो मुनीब ने आंखें खोल के उसको देखा है एक लम्हे के लिए। तो वो जब मुझे ये वाली बात बताता है तो मैं कांप जाती हूँ कि अल्लाह मुनीब उस टाइम अगर वो तुम्हें देख लेता, वो तो चेक कर करके मार रहे थे, जख्मी बच्चों को चेक कर करके मार रहे थे दोबारा कि कोई जिंदा ना बचे। अगर ये जो जख्मी जिनको मतलब उन्होंने बुलेट्स मार दी थी उसके बाद वो दोबारा उनको चेक कर रहे थे कि कोई जिंदा तो नहीं है। ये मुनीब ने आपको बताया है कि चेक कर करके मार रहे थे वो? हाँ, चेक कर करके मार रहे थे कि जो जरा सी चीखता हुआ नजर आ रहा है, तड़पता हुआ नजर आ रहा है। तो मुनीब के पास आके उन्होंने कहते जब वो दोबारा मेरे पास थोड़ी से फासले पे खड़ा हुआ है तो मैंने कहा बस अब मेरा नंबर आया है, लेकिन ये स्टिल पड़ा रहा है ना, तो उन्होंने ये बस अल्लाह ने उसको बचाना था। वो इतनी खतरनाक जगह, उस दहशत के माहौल में मुनीब इतने घंटे रहे हैं वहाँ, क्या बताते हैं वो उधर का? वो कहता है कि जब मैं उठा हूँ वहाँ से हमको 1.5 घंटे के बाद, जब बिल्कुल हमें पता चला फायरिंग अब ख़त्म हो गई है सारा कुछ, तो जब इनको आवाज़ें आनी बंद हो गई हैं उसके बाद बच्चों के उठ के भागने की आवाज़ें आई हैं ऑडिटोरियम से। तो कहता है मैं भी खड़ा हुआ हूँ, फिर मुझे जब बच्चे भागने लगे तो मैं भी खड़ा हुआ हूँ और हम बच्चों की जो लाशें पड़ी हुई थी ना उसी के ऊपर से चल के गए, क्योंकि जाहिर है वो चेयर्स के पीछे बच्चे लेटे हुए थे सारे पड़े हुए मरे हुए। फिर जब ये मुनीब निकल के उन बच्चों के साथ भागा है निकल के ऑडिटोरियम से, तो कहते हैं मैं बाहर जब निकला हूँ तो कहते हैं हर तरफ धुआं ही धुआं था, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, मेरा दिमाग ही नहीं काम कर रहा था। तो कहते हैं मुझे बच्चों का धक्का लगा ना भागते में, तो मैं बस उसी रौ में मैं भी भागता गया हूँ। फिर ये एक जाके ये सब बच्चे एक क्लास में छुप गए हैं, वहाँ पर इन्होंने कुंडी लगा ली बंद करके दरवाज़ा। फिर एक बच्चा ऐसा था जो उसका बिल्कुल ये पूरा जबड़ा जो था ना ये सारा निकला हुआ था, वो बिलबिलाता हुआ चिल्लाता हुआ वो इनके दरवाजे पे खड़ा हो गया, शीशे के पास उसने हाथ ऊपर किए। तो इनके साथ इनकी कोई मैडम भी छुपी हुई थी बच्चों के साथ, तो उनकी चीख निकल गई उस बच्चे को देख के, उस बच्चे की सारा ये निकला हुआ था हिस्सा, इतनी उसको उन्होंने जैसी किसी एक बच्चे ने इसकी कुंडी खोली दरवाजे की तो वो बच्चा गिर पड़ा है। तो आधा वो बच्चा दरवाजे से बाहर था और आधा अंदर था। तो फिर उन बच्चों ने उसको हाथ से पकड़ के घसीटा और दरवाजे को लॉक कर दिया दोबारा।
फिर जब ये लोग आर्मी जब आई है जब दोबारा आर्मी आई है तो उन लोगों ने फिर इनको सेव किया, नॉक किया। जब इन लोगों ने फिर पूछा कि नहीं आप लोग कौन है, उसके बाद इन लोगों ने दरवाज़ा खोला है, इस तरह से दरवाज़ा खोला है। फिर उसके बाद इन बच्चों को लेके ये डिफेंस पार्क में वहाँ बिठाया इन बच्चों को। शगुफ्ता, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आज आपने वक्त निकाला। आपको ये बावर कराती हूँ कि हम सब आपके साथ मौजूद हैं। आपकी तकलीफ़, आपके दुख को महसूस कर रहे हैं, उसको समझ रहे हैं और आपके लिए दुआ गो हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। 16 दिसंबर का इंतज़ार करती हुई, 16 दिसंबर से डरती हुई ये माएँ, मगर बस एक चीज़ मैं ये बस और कहना चाहूँगी कि मैं सिर्फ सियासतदानों के साथ साथ अपने मुल्क के, हमारी जो अपने मुल्क की जो तमाम पब्लिक है, मैं ये चाहती हूँ कि हर आदमी इस दुख को महसूस करे और इसके लिए आवाज़ उठाए। बिल्कुल जी। आज ये हमारे साथ हुआ है, कल ये तुम्हारे साथ ना हो। मैं ये चाहती हूँ कि कल ये किसी के साथ ना हो, और ये उस वक्त ही होगा जब हमारे मुल्क का हर आदमी खड़ा हो जाएगा। फिर इन पीछे जो मास्टरमाइंड लोग हैं, फिर इनकी कोई ताकत नहीं रहेगी। मेरे साथ इस वक्त शाहीन साहबा मौजूद हैं। शहीद मुबीन शाह अफरीदी की वालिदा हैं, मैट्रिक के स्टूडेंट थे शहीद मुबीन शाह। बहुत बहुत शुक्रिया शाहीन साहबा मेरे प्रोग्राम में आने का। बहुत शुक्रिया आप लोग का, जो आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाल के हमें दिया और हमारे बच्चों को याद रखा। तमाम वक्त आपके लिए, आपके बच्चों के लिए है। 16 दिसंबर आ रहा है, बिल्कुल 1 साल होने को आया है। कैसा गुजरा है ये साल? 1 साल हो गया है, लेकिन हमारे लिए यही है कि हम, ऐसा लग रहा है कि आज भी 16 दिसंबर, कल भी 16 दिसंबर, आने वाला दिन भी हमारे लिए 16 दिसंबर, क्योंकि हम 16 दिसंबर से निकले ही नहीं है। 1 साल हमारे लिए इतना भारी, एक एक दिन हमारे लिए इतना भारी, एक साल के बराबर। हम कैसे वो दिन भूल सकते हैं जिस दिन हमने अपने हाथों से बच्चों को तैयार किया और रुखसत किया। जो मुबीन है वो आपके एक ही बेटे हैं? जी। 2 बेटियां हैं आपकी, एक सेकंड ईयर में है, शी इज अ पोजीशन होल्डर, APS से ही पढ़ के गई हैं। जी। दूसरे 4th क्लास में आपकी बेटी है। बिल्कुल। मुबीन के बारे में कोई बात बताएं हमें। आदत की सुबह जब वो उठा तो तैयार हुआ और अपने बाल वगैरह सेट किए। वैसे तो था स्टाइलिश बनने का, उसको बहुत शौक था, आपने पिक्स देखी भी होंगी उनकी। और तैयार हुआ, बहुत जल्दी में था और बहुत ज़्यादा खुश था। मैं उस दिन बेटे से कह रही, मैं बेटा आज बहुत जल्दी में हो, क्या वजह से इतनी जल्दी में जा रहे हो? तो कह रहे मामा बस मुझे जल्दी, और बस वो खुशी खुशी, जैसे वो कहते हैं ना कि जन्नत के फरिश्ते उनका इंतज़ार कर रहे थे कि बेटा बस जल्दी से आ जाओ। तो उस दिन बहुत खुश था। बस जाते जाते आखिर उसके यही अल्फाज थे, मामा मैं जा रहा हूँ। तो मैंने कहा कि ठीक है बेटा, अल्लाह अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह आपका नगहबान। यही कहा कि आयतल कुर्सी पढ़ते जाना बेटा। कहते मामा अब मैं बड़ा हो गया हूँ। मैंने कहा बेटे आप बड़े भी हो गए तो मेरे लिए वही छोटे हो। बस जाते हुए उसने आखिरी दफ़ा हाथ हिलाया, हालांकि वो रेगुलर हाथ नहीं हिलाता था। उस दिन उसने मुझे हाथ हिला के, मतलब दूर से हाथ हिलाया और आखिरी दफ़ा देख के चला गया। मुझे अगर पता होता कि मेरे बेटे ने जाना है, फिर नहीं आना है, तो बस मेरी यही आरज़ू है कि मैं अपने बेटे को गले लगा लेती, एक दफ़ा प्यार कर लेती, जो मैंने नहीं किया। और आज तक वो दिल में एक खलिश है कि मैं कैसे अपने बेटे को गले लगाऊंगी, जो मैं नहीं लगा सकती। मुझे बस यही बहुत बेटे की याद आती है, बहुत ज़्यादा। हर लम्हा उसकी बातें याद आती है। जब भी मैं टीवी में कहीं फुटबॉल गेम देखती हूँ तो मुझे मेरा बेटा याद आता है। जब भी मैं उसके एज के बच्चों को देखती हूँ जो कॉलेज जा रहे होते हैं, मेरे बेटे ने भी यही वो किया था कि मम्मा कॉलेज की लाइफ कैसे होती है। मैंने कहा बेटा जब आप आओगे कॉलेज में तो आपको पता चलेगा। आज मैं उसके एज के बच्चों को देखती हूँ जो कॉलेज जा रहे होते हैं, तो मेरा दिल बहुत दुखता है कि आज मेरा बेटा भी जा रहा होता। आपने सब्र करना है शाहीन, और सब्र किया है आप लोगों ने। बहुत पूरे पाकिस्तान को झंझोड़ा है आपके बच्चों ने। यकीनन मुश्किल वक्त है और 16 दिसंबर का दिन यकीनन बहुत मुश्किल भी होगा, लेकिन हम सारी कौम आपके साथ खड़ी है। कुछ पाकिस्तान की माओं को कोई पैगाम देना चाहती हैं आप? मैं पाकिस्तान की माओं को यही पैगाम दूंगी
कि कभी भी ना डरें दहशतगर्दों से। हर हाल में हमने इन दहशतगर्दों का मुकाबला करना है हम माओं ने, क्योंकि अब माएँ ही खड़ी होंगी, क्योंकि माओं के लिए बच्चों को कुर्बान करना अपने मुल्क के लिए बहुत बहुत मुश्किल काम है। कहना बहुत आसान है, अब यकीन करें कहना बहुत आसान है, लेकिन जिस तरह हमने अपने बच्चों को वो किया ना, तो मैं ये नहीं चाहती कि मेरे और बच्चे इस तरह शहीद हों। लेकिन मुझे इतना वो है कि मेरी कौम की माएँ बहुत बहादुर हैं। जिस वक्त भी उनको अपने मुल्क के लिए कुर्बानी की वो बढ़े तो वो ज़रूर अपने बच्चों को कुर्बान करने से दरिग़ नहीं करेंगे। आज हमने आपको उन माओं की आवाज़ें सुना दी हैं। कोई वजह नहीं थी कि ये माएँ वहाँ मौजूद थीं, कोई वजह नहीं थी कि हम में से अल्लाह माफ़ करे कोई भी उनकी जगह हो सकता था। ये ज़रूर आज सोचिएगा और अपने आप से सवाल कीजिएगा कि क्या उन बच्चों की शहादतों के बाद, इन ख़वातीन की शहादतों के बाद हमने जो डायरेक्शन एक रखने का वादा किया था, हम आज उस वादे पर कायम हैं या नहीं है। दिस इज़ माई क्वेश्चन टू यू। अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।